برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں میں آج پھر ریکارڈ اضافہ۔ ایک ہی روز میں مزید 917 افراد کی ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد 9875 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 79,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ ویکینڈ اور ایسٹر پر بھی لوگ گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہو چکے۔ اور مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں روز ریکارڈ اضافہ۔ آج 917 کرونا وائرس کا شکار ہو کر موت کی وادی میں چلے گئے۔ ہلاکتیں بھی 10,000 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 79,000 سے بڑھ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو 3 راتیں ICU میں رکھنے کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، تاہم ابھی انہیں کئی روز ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہنا پڑے گا۔ NHS کے سٹاف کی اس کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی، جس میں وہ ڈاکٹر بھی شامل ہے جس نے چند روز قبل برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھ کر NHS کے سٹاف کے پاس کم سہولیات ہونے کا کہا تھا۔ برطانوی حکومت نے سنی ویکینڈ پر معمول سے زیادہ سختی کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ خونی وائرس نے لندن کے شہریوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ مجموعی طور پر جاں بحق افراد میں سے 30% سے زائد افراد کا تعلق لندن سے ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کے جلد ختم کیے جانے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن طرز کی کئی پابندیاں 6 ماہ تک بھی رہ سکتی ہیں اور اس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر برمنگم میں پاکستانی نژاد سماجی اور کاروباری شخصیت نے کرونا وائرس سے لڑنے والے میڈیکل سٹاف اور کارکنوں کو کھانا فراہم کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک فون کال پر ان کو فری کھانا مہیا کیا جائے گا، جبکہ گرین لین پر موجود کنٹینر سے فری کھانا وصول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے باعث بے شمار افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ان میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے NHS ورکرز سمیت کچھ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے بے روزگار افراد بھی شامل ہیں، جن کو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کا سامنا ہے۔ ان میں ہوم لیس افراد بھی شامل ہیں۔ ان افراد کو فری فوڈز مہیا کرنے کی غرض سے گزشتہ روز ایک پاکستانی نژاد سماجی اور کاروباری شخصیت واجد علی برکی نے کرونا وائرس سے لڑنے والے میڈیکل سٹاف اور کارکنوں کو مفت کھانا عطیہ کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا، جس میں ابتدائی طور پر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سڑکوں پر سٹال لگا کر بغیر کسی شناخت کے ضرورت کے مطابق پیکنگ کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر فرنٹ لائن ورکرز کو کھانا ضرورت کے مطابق ڈیلیور کیا جائے گا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران واجد علی برکی، قاضی احسان الحق اور دیگر نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں۔ NHS کے سٹاف کو دیا جائے گا، جو فرنٹ لائن کیریئر ہیں ان کو دیا جائے گا، وہ اپنے اگر پیشنٹس استعمال کرنا چاہیں تو وہ ان کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ سارا ہم نے یہاں رکھ دیا ہوا ہے، جن جن لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ کلیکٹیو کمیونٹی کو ان معاملات میں اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ کمیونٹی اس وقت بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ It's got to be like a blessing from God, and it's good to see that people have such feelings and such concern inside of them for their fellow human being, that they do something like this. We are providing food for people in need in these hard times. We are starting off a project that will deliver food to everyone's home directly. ان کا مزید کہنا تھا کہ فری فوڈ کا خیال سب سے پہلے کچھ بے روزگار افراد کو دیکھ کر آیا تھا اور ہمارے ہاں مستحقین کو نہایت احترام اور عزت کے ساتھ بے حد اعلیٰ طعام کھلایا جاتا ہے۔ لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے جہاں حکومتی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں مخیر حضرات بھی ضرورت مندوں کی مدد میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیش ہیں۔ اس موذی مرض سے نمٹنے کے لیے جہاں حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، وہاں لوکل سطح پر اوورسیز پاکستانی بزنس مین بھی پیش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس ایریے میں جہاں بے شمار بے روزگار لوگ موجود ہیں، اس ایریے میں کھانا پرووائڈ کرنے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم۔ خبر یہ بھی ہے کہ گریٹر مانچسٹر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے وزیر اعظم عمران خان کی کرونا ریلیف فنڈ اپیل اور 92 نیوز کے مالکان اور اس کی ساری ٹیم کو مہم کا حصہ بننے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس فنڈ میں زیادہ سے زیادہ اپنی رقوم جمع کروائیں۔ مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اور ہر ملک اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے لوگوں اور اپنی حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ بینگ پاکستانی ہم اپنے بھائیوں کی اور اپنی گورنمنٹ کی یہاں UK میں رہتے ہوئے مدد کریں۔ تو اس سلسلے میں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اس کار خیر میں اور اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔
वो चाहे 1 पाउंड से लेके जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि इमरान खान ने कोरोना वायरस के लिए जो फंड रेजिंग की अपील की है उसमें उनका भरपूर साथ दें, और यही कैंपेन हम इस वक्त यूके में भी चला रहे हैं कि अपने तमाम ओवरसीज़ बहन भाइयों से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितना हो सके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और यहाँ से जितने हो सकता है एहतियात जो है ना वो पाकिस्तान भेजें। कोरोना की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो कोरोना रिलीफ फ़ंड कायम किया है, तमाम तर सियासी इख्तलाफात बुला कर उसमें जितना हो सके थोड़ा या ज़्यादा अपना हिस्सा ज़रूर डालें। तमाम ओवरसीज़ बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दीजिए, खान साहब का साथ दीजिए, बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले भी खान साहब की एक आवाज़ पर लब्बैक कहा, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम पाकिस्तान को, खान साहब को मायूस नहीं करेंगे। मैं 92 न्यूज़ चैनल के मालकान, उनकी जो मीडिया टीम है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह कोरोना रिलीफ फंड में इमरान खान की अपील को उन्होंने सपोर्ट किया, हम पाकिस्तान के लिए पूरी तरह हमें हेल्प करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। इमरान खान जो इस मुश्किल वक्त में है, हमेशा ओवरसीज़ ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो मैं प्लीज़ आपसे ये अपील करता हूँ कि आप पाकिस्तान की जो फंड रेजिंग है ओवरसीज़ पंजाब कमीशन की तरफ से भी और दूसरी जमातों की तरफ से भी, और जितने भी ओवरसीज़ हैं, प्लीज़ अपने मुल्क के लिए इस वक्त उनको हेल्प की ज़रूरत है, आप अपने मुल्क पैसा भेजें। This is a special appeal from the United Kingdom for the special relief fund for coronavirus in Pakistan. It's an appeal to all Pakistanis and Kashmiris across the world to donate generously. When Imran Khan makes that call to help the people of Pakistan, he does it from the bottom of his heart. And we know that whenever you look, whenever there's a need and wherever there's a dire need, that Imran Khan will reach out to those overseas Pakistanis and Kashmiris that have always helped the most deprived of deprived communities. More than 25% of the communities within Pakistan will starve if they don't get extra help. And the special emergency cash fund has already started. What we must do is boost that fund and make sure it reaches those people that it will make a real difference to. Please donate. नाजरीन, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। उनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। 92 न्यूज़ के साथ मिलकर जिस तरह गरीबों के लिए फ़ंड इकट्ठा किया गया, उस पर तमाम दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ईस्ट लंदन से चौधरी दिलपजीर, काउंसलर काशिफ हारून, आमिर खान और मशहूर बिजनेसमैन साजिद खान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर मुश्किल की घड़ी में अपने मुल्क के लिए दिलो जान निछावर करते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, जिससे माली भी और जानी भी नुकसान हुआ है। उस सिलसिले में 92 न्यूज़ ने मिलकर इमरान खान के साथ जो 2 घंटे की फंड रेजिंग की है, उसमें लोगों ने करोड़ों रुपया इमरान खान के फंड में दिया है। इसका मतलब है कि लोग इमरान खान पे बेताशा एतबार भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम इमरान खान के साथ हैं, हम पाकिस्तानी कौम के साथ हैं और हम अपने उन डॉक्टरों के साथ हैं जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द छुटकारा देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कायम किया है कोरोना वायरस के लिए, जिसके लिए आज 92 न्यूज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो उन्होंने एक कामयाब सक्सेसफुल टेलीथॉन मुनक्कद की टू रेज फंड्स एंड अवेयरनेस। उसमें पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें 20 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जमा करवाए। पूरी कौम और पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क बिल्कुल सही सिमत पे जा रहा है और पूरी कौम इमरान खान पर अंधा एतमाद करती है। इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा शेर इमरान खान के लिए कहूँगा। ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात खबरदार हारा नहीं हूँ मैं, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़ मुनाफ़िकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। उस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डोनेशन की अपील की है और 92 न्यूज़ के साथ मिलकर 2 घंटे की जो अपील की गई है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करोड़ों रुपए जमा करवाए, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान पे लोग एतबार करते हैं। और इससे पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया हमेशा मदद की है और पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी बिजनेस मैन हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोरोना वायरस के मोहलिक असरात और मौशी तबाही के पेश नज़र बरतानिया भर की 1,70,000 रजिस्टर्ड फलाही इदारों के लिए 750 मिलियन पाउंड की खतीर रकम का ऐलान। फलाही इदारों को तरजीही बुनियादों पर 360 मिलियन पाउंड सपोर्ट फंड की मद में मुंतकिल किया जाएगा। चांसलर ऋषि के मुताबिक छोटे फलाही इदारों को बाकी मांदा फंड डिमांड के मुताबिक मुंतकिल होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट। बरतानिया में हालिया कोरोना वायरस के मोहलिक असरात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से ऐसे फलाही इदारों के लिए 750 मिलियन पाउंड की खतीर रकम का ऐलान किया है, जो इदारे बरतानिया में लॉकडाउन की वजह से बरतानवी बाशिंदों की माली और अखलाकी मदद में फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं। चांसलर ऋषि सोनिक ने अपनी तैनाती पर हुकूमत बरतानिया की जानिब से फलाही इदारों के लिए मुख्तस सपोर्ट फंड का ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क भर में 750 मिलियन पाउंड की रकम ऐसे फलाही इदारों के लिए रखी गई हैं जो अदारे कम्युनिटी में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर जरूरियात के हवाले से दिन रात अपनी फलाही खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से फलाही इदारों को सपोर्ट फंड मुंतकिल करने के अमल में नेशनल लॉटरी कम्युनिटी फंड ब्रेंट फार्मूला के तहत स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के इदारों को मुंतकिल किया जाएगा, जबकि ऐसे इदारे जो बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट फंड का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड का इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है, जिसका दायरा कार ऐलान के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से मलेशिया में फंसे हुए 200 पाकिस्तानियों समेत पाकिस्तान में मौजूद 250 मलेशियन शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। PIA की खुसूसी परवाज PK 895 200 पाकिस्तानियों को मलेशिया के हवाई अड्डे से लेकर रवाना हो गई। इस मौके पर मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलूच की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीम हवाई अड्डे पर मौजूद रही। मलेशियन वज़ीर ख़ारिजा दातुसुरी बशामुद्दीन हुसैन ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मलेशिया में फंसे हुए 200 पाकिस्तानी मुसाफिरों समेत पाकिस्तान में मौजूद 250 के करीब मलेशियन शहरियों और इनके खानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया और PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक की काविशों और हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर PIA की खुसूसी परवाज PK 895 औरतों और बच्चों समेत 200 पाकिस्तानी मुसाफिरों को मलेशिया के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से लेकर वतन वापसी के लिए रवाना हो गई। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच की ज़ेर निगरानी हाई कमीशन के आला हुक्काम, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी गुलाम हैदर और वीजा ऑफिसर मोहम्मद अफजाल ताहिर पर मुश्तमिल खसूसी टीम मुसाफिरों की बोर्डिंग पास इशू होने से जहाज में सवार होने तक हर मरहले पर इनकी मावनत के लिए कुआलालंपुर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। पाकिस्तान रवानगी से कबल मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, PIA और खास तौर पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच का इस मुश्किल घड़ी में इनका साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। 21 से हम यहाँ कुआलालंपुर में एम्बेसी के मेहमान हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया है हमें। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ताहिर भाई हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हमारी एम्बेसडर हैं अमीना बलूच साहिबा, उन्होंने हमें ना बहुत हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। मैं आज बहुत ही मशकूर हूँ अपने पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया का, जिन्होंने हमें हिफाजत में रखा और हमें होटल प्रोवाइड किया और फूड दिया, बहुत अच्छा खाना। मुख्तर मुद्दत के सियाहती वीज़े पर मलेशिया आए ये पाकिस्तानी मुसाफिर कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया जाने पर मलेशिया में फंस गए थे। गुज़श्ता 3 हफ्तों से इन तमाम मुसाफिरों के होटल्स और खाने के अखराजात की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर ने उठा रखी थी। एयरपोर्ट पर मौजूद PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब का कहना था कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंस जाने वाले 250 के करीब मलेशिया के शहरी भी इस प्रवास के जरिए आज अपने वतन मलेशिया पहुंच जाएंगे। गुज़श्ता दिनों मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातुसुरी बशामुद्दीन हुसैन ने अपने पाकिस्तानी हम मुनसब शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान में फंसे हुए मलेशियन शहरियों को PIA की खुसूसी परवाज में अकोमोडेट करें। रूस से खबर यह है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग समेत रूस के दीगर शहरों में फंसे पाकिस्तानियों में राशन तकसीम किया गया। इस आसान इकदाम पर उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया।
शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कसीर तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जो लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल तक महदूद होकर रह गए थे, जिन्हें पैसे खत्म होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहकामात की रोशनी में पाकिस्तानी सफारत खाना की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली और वज़ीर आज़म इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है। मैं इस वक्त सेंट्रल साइबेरिया के शहर टॉम्स में स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त भी -10 टेम्परेचर है और अभी हमसे मॉस्को एम्बेसी पाकिस्तान ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की है और उसके लिए हम मॉस्को एम्बेसी पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। ड्यू टू आपको पता है कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो है कर्फ्यूज़ लग चुके हैं और मॉस्को के अंदर भी इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और ग्रोसरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और डोर टू डोर कैंपेन करके हमें ग्रोसरीज प्रोवाइड की हैं। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं मॉस्को में, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और आज पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमें राशन दिया है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर सब कुछ बंद हुआ था, हमारे घर से पैसे नहीं आ रहे थे, तो हम बहुत मशकूर हैं पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि मॉस्को में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। रूस में कोरोना वायरस के फैलाव के लिए लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत मुल्क भर में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों का इस तरह ख्याल रखने और राशन फराहम करने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सफ़ीर पाकिस्तान शफकत अली खान, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कर्फ्यू लगाकर लोगों को महफूज बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी घरों में रहकर खुद को महफूज बना रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़्यादातर अफराद कर्फ्यू के दौरान खुद को दिलचस्प तरीकों से मसरूफ़ रखकर वक्त गुजारते हैं। इसी पर देखते हैं उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी वजारत सेहत की जानिब से लोगों को घरों में महदूद रहकर एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि हुकाम ने कर्फ्यू लगाकर लोगों को घरों तक महदूद भी कर दिया है। इस दौरान पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी कवानीन और एहतियाती तदाबीर की पासदारी कर रही है। वो कर्फ्यू के औकात में क्रिकेट, कैरम बोर्ड और लूडो खेल कर खुद को मसरूफ रखती है। काश मैं तेरी मुंदरी जे होंदा तेरी चीची दा विच रहिंदा शाम सवेरे तन्ने तेरे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। हम इसके कवानीन पर भरपूर अमल करके खुद को कोरोना वायरस से महफूज बना रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिस तरह सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें दिए हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं और हमने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है। और मेरी सब पाकिस्तानी भाइयों से यही गुजारिश है कि जितना खुद को घरों में रख सकें उतना रखें। मेरी पाकिस्तानियों से अपील है, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी घरों में रहें। खुदा रहा ये बहुत बुरी मर्ज है, सो स्टे होम, स्टे सेफ। जिन्ने भी परदेसी भरा ने ना, इन्हां अगे गुजारिश है कि सऊदीया के कानून ਨੂੰ फॉलो करो। तो जिन्ने पाकिस्तान के भरा ने, पाकिस्तान वास्ते भी यही पैगाम है कि जिन्ने दोस्त अहबाब रिश्तेदार भैन भरा है ने, सारे अगे गुजारिश है कि जिस तरह असीं इत्थे वक्त गुजारने आ, तुसीं भी अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना गुजारो। पाकिस्तानियों का कहना है कि सऊदी अरब की तर्ज पर पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाकर लोगों को कोरोना वायरस से महफूज बनाया जाए।